Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Wajid Hussain, lecturer in Institute of Southern Punjab. Today our subject is strategic issue in HRM. Lecture is 13 and week is 13. The topic is strategic reward system and theories. Dear student, उम्मीद है कि आप SOP का ख्याल कर रहे होंगे और कोविड-19 से बचने के लिए हिफाजती तदबीर अपना रहे होंगे। आपकी सेहत हमें बहुत ही अजीज है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इन SOP को फॉलो करना है। और स्टूडेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स आर रिवार्ड सिस्टम एलिमेंट, रिवार्ड सिस्टम एंड HR सिस्टम, इक्विटी थ्योरी, एजेंसी थ्योरी, टूर्नामेंट थ्योरी, controversies that surrounded pay for the performance plans. And the learning objects are describe and define the reward system, discuss the reward system element, define the reward system and HR system, and discuss the equity theory, agency theory, and tournament theory, and also define the controversies that surrounded pay for the premium performance plans. Learning outcomes: after studying this lecture, students, you will be able to know about the reward system, element reward system and HR system, equity theory, agency theory, and tournament theory. Reward system and in an organization, reward are positive outcomes that are earned by the result of an employee's performance. यानी employees की performance, जो employee performance करता है उस पर जो earn करता है उसको reward कहते हैं. These rewards are with align organization goals. ये organization goals के साथ align होती हैं. अगर वो target achieve कर रहा है, goal achieve कर रहा है, तो उसको reward मिलेगा. When an employee help an organization in the achievement of its goal, जब एक employee help करता है, मदद करता है organization की कि achievement of goal, कि उसके goal की achievement में, a reward often follow, तो वो उसको reward मिलता है. Reward system consists of the following elements. Following element मुश्तमिल होता है: financial reward, compensation, financial reward है, और second है non financial reward. Financial reward में compensation में है base salary base होता है, pay incentive होते हैं, और employees benefits होते हैं. These are the financial reward. And the non financial reward, intrinsic reward है center on the work itself, praise है, recognition है, time off and other rewards हैं, given to employees by the peers of the supervisor, उसके senior है वो इसको देते हैं. अच्छा जी, pay for performance reward system in most cases should be consistent with other HR system. जो रिवार्ड होता है वो कंसिस्टेंट होता है विद अदर HR सिस्टम के साथ, दूसरे अदर सिस्टम के साथ, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के साथ. द रिवार्ड सिस्टम इज की ड्राइवर ऑफ, उसके की ड्राइवर्स हैं क्या हैं? दी HR स्ट्रेटजी है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी है, बिजनेस स्ट्रेटजी है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है. दीज आर थ्री की ड्राइवर्स ऑफ रिवार्ड सिस्टम. स्ट्रेटेजिक रिवार्ड सिस्टम, pay for performance reward system is mostly cases should be consistent with HR system. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. और व्हाट इज इक्विटी थ्योरी? इक्विटी, यू नो वेल द स्टूडेंट, इक्विटी थ्योरी focus on the determining whether the distribution of resources is fair in both relational partners, के जो distribution है resources की वो fair हो रही है. Equity is measured by the comprising the ratio of contribution. ये मालूम की जा सकती है कि ratio of contribution of cost and benefits ये reward पे for each person, हर person के cost और benefit base पे contribute की जाती है. और equity theory of motivation कहते हैं, equity theory of motivation is the idea that when जब individual receives for their work has a direct effect on the motivation. के इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये है कि ऐसा आइडिया है दैट व्हाट एंड जिसमें इंडिविजुअल रिसीव हासिल करता है फॉर देयर वर्क, अपने
काम के अगेंस्ट हैज़ ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन देयर मोटिवेशन, जो उसकी मोटिवेशन पे इफेक्ट असरअंदाज होती है जो उसकी मोटिवेशन पे। व्हेन अप्लाई टू द वर्क प्लेस, अगर इसको हम वर्क प्लेस काम करने वाली जगह अप्लाई किया जाए, इट मीन्स एन इंडिविजुअल विल जनरली एम, इंडिविजुअल का मकसद ये होता है टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन व्हाट दे गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन, के बैलेंस क्रिएट किया जाए, पैदा किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या दे रहा है, और कंपेयर किया जाता है व्हाट दे गेट इन रिटर्न, और इसके अगेंस्ट या रिटर्न में क्या हासिल कर रहा है। थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ पे एंड परफॉर्मेंस इक्विटी थ्योरी assumption क्या है जी, people develop beliefs about what is fair reward for one job contribution and exchange, कि people develop करते हैं belief, उनके माइंड में ये belief, ये यकीन होता है कि about what a fair reward, के what is a fair reward, के fair reward क्या है for one job contribution, के एक अगर कोई जॉब के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एंड एक्सचेंज यानी उसके बदले में क्या मिलता है। पीपल कंपेयर देयर एक्सचेंज विद देयर एम्प्लॉयर टू एक्सचेंजेस विद अदर इनसाइडर एंड द आउटसाइडर कॉल्ड रेफरेंट, और पीपल जो है ना कंपेयर करते हैं एक्सचेंजेस विद देयर एम्प्लॉयर, जो उनका एम्प्लॉयर होता है जो उनको जॉब देता है उसको कंपेयर करते हैं टू एक्सचेंजेस विद अदर इनसाइडर एंड आउटसाइडर कॉल्ड रेफरेंट, जो दूसरे एम्प्लॉयर होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। इफ एन एम्प्लॉय बिलीव्स, अगर एक एम्प्लॉय का यकीन है कि हिज ट्रीटमेंट इज इनइक्विटेबल, के इक्वलिटी नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट जो उसको दिया जा रहा है उसमें अनइक्विबिलिटी है या इनइक्विबिलिटी है, कंपेयर टू द अदर, वो दूसरों के साथ कंपेयर करता है, ही या शी विल बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग अबाउट, अगर वो मोटिवेट होगा इसमें से, दैट इज द सीक जस्टिस, और यानी वो जस्टिस तलाश कर रहा होता है। इक्विटी थ्योरी एक्सचेंज सिनेरियो Case 1, equity pay allocation is perceived to be too fair, motivation is sustained, कि fairness हो और motivation उसमें हो। Case 2 है inequity underpayment, employee is motivated to seek justice, employee जो है ना motivate होता है justice को तलाश करने में, work motivation is disrupted, और वर्क मोटिवेशन डिसरप्टेड होता है उसका। केस 3 है इनइक्विटी जब हो तो ओवर पेमेंट होती है, पहले अंडर पेमेंट होती है वो भी इनइक्विटी है, और ओवर पेमेंट है वो भी इनइक्विटी है, और बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इक्विटी होती है। ओवर पेमेंट कुड भी प्रॉब्लम हो सकती है, इन एफिशिएंट इन अदर कल्चर इम्प्लाइज लूज फेस, ये वजूहत हैं इक्विटी और इनइक्विटी की। एजेंसी थ्योरी क्या है? एजेंसी थ्योरी इज ए प्रिंसिपल, ऐसा प्रिंसिपल है, कानून है, दैट इज जो यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन एंड रिजॉल्व इश्यूज इन रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस प्रिंसिपल एंड द एजेंट। बिजनेस प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो कोई इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। मोस्ट कॉमनली दैट रिलेशनशिप इज वन बिटवीन शेयर होल्डर, अक्सर ये जो रिलेशनशिप है शेयर होल्डर के दरमियान होता है, इज द वन बिटवीन शेयर होल्डर एज प्रिंसिपल एंड द कंपनी एग्जीक्यूटिव, प्रिंसिपल के दरमियान, शेयर होल्डर के दरमियान और कंपनी एग्जीक्यूटिव के दरमियान। यानी इसमें मैनेजमेंट आ जाती है और शेयर होल्डर आ जाता है और डायरेक्टर आ जाते हैं, ऑनर्स आ जाते हैं, उनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हो उसको रिजॉल्व किया जाता है। यानी जिस तरह आप यूँ समझ लें कि अगर एक प्रिंसिपल है, ऑनर है, उसने शेयर होल्डर ने शेयर्स परचेज किए हुए हैं, और मैनेजमेंट उसको जो है ना अपने बेनिफिट को गेन कर रही है, शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं दे रही, और जबकि मैनेजमेंट का काम है वो एज ए जो है ना एजेंट होती है, शेयर होल्डर के जो है ख्याल रखती है शेयर होल्डर के, जितना उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए, वो खुद गजब नहीं करती मैनेजमेंट। तो
ये रिलेशनशिप जब उसके माइंड में शेयर होल्डर के आ जाए कि ये जो मैनेजमेंट है, ये प्रिंसिपल है, ये डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे जो है ना जो हक है, हमारे राइट्स को गजब कर रहे हैं, तो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। यानी मैनेजमेंट ये है कि फर्ज के उन्होंने जो बेनिफिट देना है शेयर होल्डर को वो खुद ले लेते हैं और गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, अच्छी रेजिडेंस अपने बेनिफिट को यूज़ करते हैं, तो इन्हीं के प्रॉफिट से। जबकि रियल ऑनर जो है ना कॉमन स्टॉक होल्डर वाले जितना है वो रियल ऑनर होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी कॉमन स्टॉक और एक प्रेफर्ड स्टॉक शेयर होल्डर होते हैं और कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर होते हैं। तो इनका ख्याल ना रखते हुए जो मैनेजमेंट है वो अपने बेनिफिट को यूज़ करती है, जिससे और इस तरह जो शेयर होल्डर हैं, जो ऑनर ऑफ द, जिनको ऑनर भी कह सकते हैं, क्योंकि शेयर परचेजर यही करते हैं जिनकी बेस पे कंपनी रन कर रही होती है, ये शेयर होल्डर फिर जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है इनका, तो उसको रिजॉल्व किया जाता है एजेंसी थ्रू रिलेशनशिप को डेवलप किया जाता है। एजेंसी थ्योरी इज ए थ्योरी ऑफ गवर्नेंस इन द वर्कप्लेस के आप एजेंसी थ्योरी कहते हैं, थ्योरी ऑफ गवर्नेंस है वर्कप्लेस, जहाँ काम किया जाए वहाँ गवर्नेंस को बेहतर किया जाता है। इट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑनर्स एंड द कंट्रोल प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव एंड नॉन ऑनर। ट्राइज टू रिजॉल्व, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है जो ऑनर्स के दरमियान और शेयर होल्डर्स के दरमियान, यानी शेयर होल्डर और कंट्रोल प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो होते हैं, डायरेक्टर्स के दरमियान जो होते हैं, जो नॉन ऑनर के दरमियान जो होते हैं, उनको ये रिजॉल्व करती है। इट आल्सो ट्राइज टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजर्स, ये कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करती है मैनेजर्स के और एम्प्लॉइज के विद डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। दिस इज एजेंसी थ्योरी, यानी कन्फ्लिक्ट को दूर करना, इश्यूज को रिजॉल्व करना जो इनके दरमियान आपस में प्रिंसिपल एजेंट शेयर होल्डर के दरमियान जो होते हैं। प्रिंसिपल क्या है जी? ऑनर्स ऑफ द ऑनर्स जो मैनेजर हु डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वाजे हो गए प्रिंसिपल कौन है? ऑनर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं हु डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और एजेंट क्या होते हैं? मैनेजर्स या एम्प्लॉइज होते हैं हु मैनेज फर्म्स एसेट्स फॉर ऑनर्स या अदर प्रिंसिपल्स, जो मैनेज करते हैं एसेट्स को, फर्म के एसेट्स को ऑनर्स के लिए या दूसरे प्रिंसिपल्स के लिए या दूसरे मैनेजर्स के लिए। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्या है जी? मैनेजर या अदर एजेंट हैव ग्रेटर एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन दैट प्रिंसिपल, उनकी जो मैनेजर्स या दूसरे एजेंट हैव ग्रेटर एक्सेस, उनकी ज़्यादा एक्सेस होती है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन पे दैट प्रिंसिपल दैन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की निस्बत यानी ऑनर्स की निस्बत। who are not willing to bear the cost of directly monitoring the agent due to the steep agency cost, who are not willing, वो agree नहीं होते इस चीज़ पे, to bear के कॉस्ट को बर्दाश्त करें और डायरेक्टली मॉनिटरिंग जो मॉनिटरिंग के दरमियान हो रही होती है द एजेंट ड्यू टू स्टीप एजेंसी कॉस्ट की वजह से। रिस्क प्रेफरेंसेस के होते हैं, रिस्क प्रेफरेंसेस प्रिंसिपल आर रिस्क न्यूट्रल एंड द विलिंग टू बेयर ग्रेटर रिस्क, प्रिंसिपल जो है रिस्क न्यूट्रल होते हैं और ये तैयार होते हैं कि ग्रेटर रिस्क को बेयर करने के लिए देन एजेंट बिकॉज देयर एसेट्स वेल्थ इज मोर लाइकली टू डाइवर्सिफाइड बिटवीन कॉर्पोरेट एसेट्स एंड द अदर इक्विटीज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनकी जो है एसेट्स हैं, वेल्थ है मोर लाइकली टू बी डाइवर्सिफाइड होती है इसके दरमियान कॉर्पोरेट एसेट्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट के दरमियान। एजेंट्स आर मोर रिस्क अवर्सर, एजेंट जो होता है रिस्क अवर्सर बहुत ज़्यादा होता है दैन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की निस्बत, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ इज कंसनट्रेटेड इन द फर्म, क्योंकि उनकी ज़्यादा वेल्थ यूज
की इनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है फर्म में, एंड रिसीव इन द फॉर्म ऑफ पे, और वो पे की सूरत में हासिल करते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन, और उनके प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए होती हैं। अच्छा, moral hazard agent is tempted. Also, some cases succeed in taking advantage of information asymmetry with the principal and the act opportunity. तो वो उनके पास एडवांटेज होता है इंफॉर्मेशन का, और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर द मोरल एजेंसी प्रॉब्लम, सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन तैयार करती हैं। और इंसेंटिव अलाइनमेंट, द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेसिफाई ए कंपनसेशन प्लान स्पेसिफाई करती है प्लान दैट अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट, के प्रिंसिपल और एजेंट का इंटरेस्ट पैदा हो उसमें। और टूर्नामेंट थ्योरी क्या है जी? द टूर्नामेंट थ्योरी ऑफ द वेजेस, the tournament theory of the wages explain a system of awarding promotion and the bonuses based on the relative productivity of the worker। ये टूर्नामेंट थ्योरी ये है कि वेजेस का, उजरत का, थ्योरी ऑफ द वेजेस एक्सप्लेन उजरत को एक्सप्लेन करती है। टूर्नामेंट थ्योरी ऑफ वेजेस एक्सप्लेन किसको करती है? सिस्टम ऑफ अवार्डिंग प्रमोशन, अवार्डिंग करना, ऐसा सिस्टम जिसमें अवार्ड किया जाए, प्रमोशन अवार्ड की जाए, एंड बोनसेस अवार्ड किए जाए बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, जिसकी बेस किस पे होती है कि उन वर्कर भी वो प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हैं। टूर्नामेंट थ्योरी इज यूजफुल फॉर द डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। टूर्नामेंट थ्योरी यूजफुल होती है, मुफीद होती है डिस्क्राइबिंग बिहेवियर को डिस्क्राइब करने में, व्हेन रिवार्ड स्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन द रिलेटिव रैंक रादर देन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ आउटपुट। रैंक के मुताबिक जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बजाय एब्सोल्यूट लेवल ऑफ आउटपुट की बजाय। टूर्नामेंट थ्योरी इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वेजेस डिफरेंसेस, एक्सप्लेनेशन है कि जरूरत के डिफरेंसेस इन टर्म ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस इज ऑफन, जो रिलेटिव परफॉर्मेंस अक्सर हो उनमें ये एक्सप्लेनेशन डिफरेंसेस की एक्सप्लेनेशन है। टूर्नामेंट थ्योरी आल्सो कंपोजिशन बिटवीन कंपटीशन कंपटीशन है। टूर्नामेंट थ्योरी कंपटीशन है बिटवीन पीस के दरमियान टू अचीव ए प्रमोशन टू हायर रैंक along with the पे के साथ उनका हायर रैंक भी मिले, and perks that go with it। Tournament are likely to result a winner take all outcomes। अच्छा, और है जी, मैनेजर्स who enter the tournament must forgo other alternative, दूसरे अल्टरनेटिव के लिए भी वो तैयार होते हैं, सच एज जॉब्स विद अदर फर्म्स में जॉब, स्टार्ट ऑन बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिसीव मोर पे, ज़्यादा पे हासिल कर सकते हैं, विद एन अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, टू कम्पीट इन द टूर्नामेंट को कम्पीट करने के लिए। टूर्नामेंट थ्योरी, ए हाई पे डिफरेंशियल सच एज CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रिसीव मच ग्रेटर पे देन एनी सबऑर्डिनेट, अट्रैक्ट मोर प्लेयर्स टू द टूर्नामेंट। वो उसकी सैलरी जो CEO सबसे ज़्यादा होती है जो से एम्प्लाइज काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे होते हैं इन फर्म में। प्लेयर मस्ट इन्वेस्ट वर्क लॉन्ग आवर्स एक्सेप्ट लेस पे, शो लॉयल्टी टू देयर बॉस। प्लेयर जो होते हैं मस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या है, वर्क लॉन्ग, ज़्यादा टाइम वो देते हैं, लेस पे उनकी होती है, स्लो लॉयल्टी टू देयर बॉस, शो लॉयल्टी भी होती है उनके बॉस के साथ, टू इंटर द टूर्नामेंट में एंटर होता है। फर्म कैप्चर करती है वैल्यूज फ्रॉम दीज प्लेयर्स, इनकी कैप्चर वैल्यूज फ्रॉम दीज प्लेयर्स, इन प्लेयर्स वैल्यू कैप्चर करती है, मोर देन व्हाट गिव अप टू द विनर फॉर द प्राइज, के किस चीज़ को, व्हाट इट गिव, कि ये किस चीज़ को तर्क करते हैं प्राइज के लिए।
Controversies that surrounded pay for the performance plan. Single mindedness. Controversies कहते हैं पहले है सिंगल माइंडेडनेस, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। आप हासिल करते हैं जो जिसके लिए आप जो करते हैं आप, नो मोर, उससे ज़्यादा नहीं, ना लेस, ना उससे कम। द एक्टिविटीज़ दैट आर रिवार्डेड गेट डन, जो ऐसी एक्टिविटीज जो रिवार्डेड होते हैं गेट डन टू द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज के साथ एक्सक्लूजन होती है, दैट आर नॉट रिवार्डेड, जो रिवार्ड नहीं की जाती। द एक्टिविटीज दैट आर रिवार्डेड, जो वो एक्टिविटीज जिनको रिवार्ड किया जाता है गेट डन हो जाती हैं टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ द अदर एक्टिविटीज, दूसरी एक्टिविटीज के अलावा, दैट आर नॉट रिवार्ड, जो रिवार्डेड नहीं होती। एग्जाम्पल, द डिसफंक्शन बिहेवियर्स दैट आर ऑब्जर्व। डिसफंक्शन बिहेवियर जो है जो ऑब्जर्व होता है व्हेन ए सेल रिप्रेजेंटेटिव इज पुट ऑन स्टेट कमीशन, जब उसको स्टेट कमीशन दिया जाता है तो बिहेवियर डिसफंक्शन ऑब्जर्व होता है। कंट्रोवर्सी सेकंड है द कंट्रोल। एक्सटर्नल एक्सटर्नैलिटीज एक्सटर्नैलिटीज कैन कंट्रोल द आउटकम्स। आउटकम को कंट्रोल करती हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है आउटकम। दे कैन बी विंडफॉल इफेक्ट, विंडफॉल उनका इफेक्ट होता है। द बुल मार्केट improving the stock value of the all stock option, ये है जी विंडफॉल इफेक्ट। द बुल मार्केट इंप्रूविंग, इंप्रूव कर रही होती है, बड़ी मार्केट इंप्रूव कर रही होती है स्टॉक वैल्यूज को ऑफ ऑल स्टॉक ऑप्शन में। या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ए बेयर मार्केट, ए बेयर मार्केट है या रिसेशन दैट लोअर द वैल्यूज ऑफ ऑल स्टॉक, जो वैल्यूज स्टॉक की वैल्यूज को कम कर होता है। और वहाँ था स्टॉक वैल्यूज, बुल मार्केट इंप्रूव, वहाँ इंप्रूव हो रही होती है बुल मार्केट विंड विंडफॉल में, और यहाँ जो है ना कम हो रही होती है, लोअर द वैल्यू स्टॉक की वैल्यूज कम हो रही है। इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस रिजल्ट में बी मैग्नीफाइड या डाइल्यूटेड बाय दीज इफेक्ट्स। एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस है रिजल्ट में भी, उनका रिजल्ट है में भी मैग्नीफाइड हो सकता है, या डाइल्यूटेड या कम हो सकता है या बड़ा हो सकता है बाय दीज इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स की वजह से। Meyer error, some measures can be gamed या मैनिपुलेटेड। कुछ measure जो है ना वो गेम्ड होते हैं या मैनु या उनको बढ़ाकर बताया गया होता है, एंड मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू परफॉर्मेंस, जो ट्रू परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते। सेल रैप्स, जो सेल रैप्स होते हैं कैन विद होल्ड सेल, वो सेल को होल्ड कर लेते हैं एंड रिपोर्ट इट डिफरेंट पीरियड, उसको डिफरेंट पीरियड में शो करते रहते हैं, सो दे आर नॉट पेनलाइज बाय द कैप या सेल, वो पेनलाइज नहीं होते बाय ए कैप ऑन सेल बेस पे। कमीशन, सेल कमीशन ऑन cap on sale based commission। मैनेजर कैन यूज क्रिएटिव अकाउंटिंग मैयर्स, मैनेजर जो होते हैं वो यूज करते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग मैयर्स को टू रिपोर्ट ग्रेटर प्रॉफिट, तो शो कर रहे होते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं ग्रेटर प्रॉफिट को देन और एक्चुअली एक्सपीरियंस बाय द फर्म, जो कि एक्चुअली एक्सपीरियंस होता है फर्म का। इनफ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजर या एम्प्लॉइज में रेजिस्ट चेंज टू बेसिस ऑफ द कंपनसेशन। मैनेजर या एम्प्लॉइज वो रजिस्ट कर सकते हैं जो चेंज हुई होती है, जो चेंजिंग है ऑफ द बेसिस ऑफ कंपनसेशन की बेसिस पे चेंजिंग है, बिकॉज दे आर कंफर्टेबल विद द करंट बेसिस फॉर पे, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं जो करंट बेसिस पे होती है, एंड वांट टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग रिडक्शन इन द अर्निंग इन न्यू सिस्टम। तो न्यू सिस्टम में अर्निंग की जो कमी है उसके उससे रिस्क से घबरा रहे होते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम, डिवीजन परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पे सिस्टम। यानी डिवीजन परफॉर्मेंस है
या एंड और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस शुड बी रिफ्लेक्ट होती है पे सिस्टम में। और जी असाइनमेंट है, व्हाट इज द एजेंसी थ्योरी एंड टूर्नामेंट थ्योरी, डिस्कस बोथ थ्योरीज। आपने इन दोनों थ्योरीज को डिस्कस करना है कि एजेंसी थ्योरी क्या है, टूर्नामेंट थ्योरी क्या है, और अपने व्यूज क्लियर करने हैं इस बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।